Hello guys, welcome back to another video. Today we'll be discussing chapter 7 of audit, that is standards of auditing 520 analytical procedure. So in this video there won't be much explanation. There will be little or no explanation because this is an audiobook. Herein I'll be reading the text, so y'all just need to look at the text and listen to me. This will be helpful for quick revisions and effective revisions. Whenever you don't feel like studying, just listen to audiobooks which are available on my channel, and this will help you revise very efficiently. So let's start without wasting any time. Chapter 7, SA 520 Analytical Procedure. So as per SA 520 analytical procedure, what does analytical procedure mean? The term analytical procedure means evaluation of financial information through analysis of plausible relationships among different financial and non-financial data. What is plausible relationship? Plausible relationship is a logical connection. Logical connection among what? Financial and non-financial data. What should the auditor do as per SA 520? Auditor should investigate FDI. Auditor should investigate FDI, that is fluctuations that are abnormal, differences between actual and expected result, and inconsistent relationship. Now, objectives of auditor as per SA 520. Now, if there is any question related to SA 520, always write the objective first. This is like the definition of every question. So SA 520 से related कोई भी question आए, so you will have to write the objectives of auditor first. So what is the objective of auditor as per SA 520? To obtain relevant and reliable evidence by using substantive analytical procedure, and to design and perform analytical procedure near the end of the audit to form an overall conclusion whether the financial statements are consistent with auditor's understanding of the entity. Okay. Now comes a MCQ as well as correct and incorrect. M stands for MCQ and C stands for correct and incorrect. What is analytical procedure? Analytical procedure is divided into two types, that is substantive procedures and risk assessment procedures. So the MCQ can be the SA number. So analytical procedures hyphen substantive procedure is as per SA 520, whereas risk assessment procedures of is as per SA 315. Now the statement which I'm going to read further is a correct and incorrect for 2 marks. Okay. Auditor's substantive procedure at assertion level may be test of details or substantive analytical procedure or both. So auditor at assertion level can perform test of details as well as substantive analytical procedure both. ठीक है. And then whether to use substantive analytical procedure is based upon the expected effectiveness and efficiency of available audit procedures. Okay. कितना आप लोग को सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर यूज़ करना है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा. बाकी जो अदर ऑडिट प्रोसीजर्स जो आप करने वाले हो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, वो सब, अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का अच्छा है तो सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स कम करने पड़ेंगे. बट अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज़ नॉट सो गुड, इट इज़ डिफिकल्ट टू डू टेस्ट ऑफ कंट्रोल, तो आपको सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स ज़्यादा करने पड़ेंगे. ठीक है. उसके बाद एग्जाम्पल्स. दिस आर एग्जाम्पल्स. व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कंपैरिजन एंड व्हाट इज़ एग्जाम्पल ऑफ रिलेशनशिप. लेट्स अंडरस्टैंड रिलेशनशिप फर्स्ट. रिलेशनशिप क्यों फर्स्ट पढ़ रहे, क्योंकि हम लोग ने डेफिनेशन में पढ़ा है दैट देयर इज़ अ रिलेशनशिप, प्लॉजिबल रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा. Okay, and there is a plausible relationship among the financial information. ठीक है. Examples of relationship can be of two type, among elements of financial information and between financial and non-financial data. Among elements of financial information is gross profit and sales. Gross profit and sales both form part of what? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एंड दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है. जीपी रेशो पता है आप लोग को, जो आप लोग ने एफएम में पढ़ा है. ठीक है. एंड व्हाट इज बिटवीन द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा. हम लोग सेल्स और कस्टमर को कंपेयर कर रहे हैं कि ऑन एन एवरेज एक कस्टमर ने कितना परचेस किया और ऑन एन एवरेज हम लोग ने एक कस्टमर को कितना सेल किया. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा. नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपैरिजन. एग्जांपल्स ऑफ कंपैरिजन, आप कोई एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, बजटेड रिजल्ट्स रखोगे, उससे कंपेयर करोगे. फिर इंडस्ट्री का जो डेटा है उससे कंपेयर करोगे, या फिर यही महीने में आपने पिछले साल कितना सेल्स किया था उससे कंपेयर करोगे. दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपैरिजन. सो टू रिमेंबर द एग्जांपल्स ऑफ कंपैरिजन, हैव अ चीट कोड फॉर यू, that is beep. Okay. Now let's come to the next part, that is types of comparison. Types of comparisons is first basic client versus industry. Client versus industry. Then client data versus the similar prior period data. client का खुद का पुराना डेटा और client का अभी का डेटा. ठीक है. फिर client का डेटा और client ने जो expected डेटा दिया है आपको वो. फिर क्लाइंट का डेटा और ऑडिटर के एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो. और क्लाइंट का डेटा और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स यूजिंग नॉन फाइनेंशियल डेटा. ओके. नाउ देयर इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ये जो मैंने रेड लाइन में लिखा है ये याद कर लो, क्योंकि यही क्वेश्चन में आएगा. ऐसे का ऐसा उठा के क्वेश्चन में डालेंगे. ये ब्रीफ आंसर है 3 से 4 मार्क का. ऐसे का ऐसे उठा के क्वेश्चन डालेंगे आपके पेपर में, तो ये लाइन्स याद कर लो. ठीक है. एग्जाम्पल्स ऑफ डिटेक्शन ऑफ अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स
and mistakes in accounts. Examples of detection of unusual state of affairs and mistakes in accounts or analytical procedure uses comparisons and relationships whether account balances or other data are reasonable. दोनों का मतलब एक ही हुआ कि ऐसे एग्जाम्पल दो जिससे हम लोग अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स और मिस्टेक्स इन अकाउंट्स को डिटेक्ट कर पाए. ठीक है, तो सबसे पहले आप कैसे चेक करोगे? यू विल कन्फर्म द अमाउंट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस बाय प्रिपेयरिंग रिकन्सिलिएशन. रिकनसाइलिंग बाय फिजिकल बैलेंसेस ऑफ असेट्स विद रेलिवेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड. मतलब इन्वेंटरी का जो रिकॉर्ड आपके बुक्स में वो उसको आप फिजिकल काउंटिंग इंस्पेक्शन करके कंपेयर करोगे दोनों सेम है कि नहीं. अभी ये जो मैंने ब्लू में लिखा ना, ये तो आपको लिख के ही आना, ये लिखा ना मतलब आपका एग्जामिनर खुश हो जाएगा. ऑब्टेनिंग अकाउंट फ्रॉम बैंकर, डेटर, क्रेडिटर एंड रिकनसाइलिंग विद द रेलिवेंट बैलेंसेस इन बुक्स ऑफ अकाउंट. मतलब क्या थर्ड पार्टी से आप कन्फर्मेशन ले रहे हो. मतलब आप बैंकर को बोलोगे कि बैंकर भाई मेरे को तू बैंक डिटेल्स दे, या फिर डेटर को बोलोगे कि तू तेरे बुक में मेरा अकाउंट दिखा मेरे को, और कंपैरिजन करोगे. फिर एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन सर्टेन बैलेंसेस इंक्लूडेड इन बैलेंस शीट एंड पीएनएल एंड कंपेयरिंग देम विद दोज दैट एग्जिस्टेड बिटवीन द सेम सेट ऑफ बैलेंसेस इन द प्रीवियस ईयर. ये क्या हुआ? प्रीवियस ईयर कंपैरिजन किया. ठीक है, इतना हुआ. और ये जो लास्ट लाइन है ना, ये है करेक्ट इनकरेक्ट आपका 2 मार्क का. द ओवरऑल टेस्ट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मेकिंग इंटरफॉर्म एंड इंट्राफॉर्म कंपेरिजन ऑफ ट्रेडिंग रिजल्ट्स. ठीक है, ये आप किसके लिए कर सकते हो? ये जो लास्ट के 2 टेस्ट बोले, आप ये खुद के लिए भी कर सकते हो, इंट्राफॉर्म एंड इंटरफॉर्म भी कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट ब्रीफ क्वेश्चन कम्स. वापस से मैं बोलूँगा सेम, आपको ये ऑरेंज वाली लाइन याद रखनी है बिकॉज ये का यही क्वेश्चन उठा के डालेंगे. अमाउंट ऑफ एनी इनकम और एक्सपेंस विच हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड सेल्स कैन बी वेरीफाइड इंडिपेंडेंटली. इसके आपको क्या करना पता है? इसके आपको एग्जांपल्स देने. क्या बोला है? अमाउंट ऑफ एनी इनकम और एक्सपेंसेस विच हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट और सेल्स कैन बी वेरीफाइड इंडिपेंडेंटली. इसमें क्या आएगा? ऐसे कौन से अमाउंट्स है, इनकम्स है या फिर एक्सपेंसेस है जो प्रॉफिट और सेल्स से डायरेक्टली रिलेटेड है. आप मैनेजर को कोई कमीशन दे रहे हो एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, सेलिंग एजेंट को कमीशन दे रहे हो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, कंसाइनी को आप कमीशन दे रहे हो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स. तो आपको ये तीनों एग्जांपल लिखने. कमीशन पेड टू मैनेजर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट, कमीशन पेड टू सेलिंग एजेंट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, कमीशन पेड टू कंसाइनी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स. सच कैलकुलेशंस ऑफ रेशियोज, ट्रेंड्स एंड कंपैरिजंस आर आल्सो टर्म्ड एज एनालिटिकल रिव्यू. ठीक है, आप बोलोगे सर क्वेश्चन कुछ और था, हम लोग ने आंसर कुछ और दिया. यही प्रॉब्लम है ऑडिट में, आप लोग को क्वेश्चन और आंसर का रिलेशनशिप समझ में नहीं आता. तो इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो ऑरेंज पार्ट है क्वेश्चन का वो रट लो, कहाँ पे भी मिस्टेक नहीं आएगी. ये है ना, क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स. टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स. एनालिटिकल प्रोसीजर्स कब कब होएगा? एनालिटिकल प्रोसीजर्स फॉर नाउ is for 3 phases, that is planning phase, testing phase and completion phase. Planning phase is as per SA 315. हम लोग ने अभी ऊपर पढ़ा था. What is SA 315? What is SA 315? जल्दी कमेंट में बताओ मेरे को, मैं ऊपर पहुँचूँ उसके पहले. SA 315 इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और SA 520 क्या है? सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं. तो प्लानिंग फेज़ में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेंगे. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से हम लोग को पता चलेगा कि कहाँ पे ज़्यादा रिस्क है. फिर जहाँ पे ज़्यादा रिस्क है वहाँ पे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स भी अप्लाई करेंगे टेस्टिंग फेज़ में और कंप्लीशन फेज़ में. तो ठीक है, चलिए रीड करते हैं. सबसे पहले प्लानिंग फेज़ SA 315. एनालिटिकल प्रोसीजर असिस्ट द ऑडिटर इन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स बिजनेस एंड आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ पोटेंशियल रिस्क. Helps in determining the nature, timing, extent of other audit procedures. Testing phase SA 520. Use of analytical procedure as substantive audit procedure. Example, salary versus employee. कन्फर्मेशन करने के लिए था ये एग्जाम्पल. उसके बाद कंप्लीशन फेज SA 520. ओवरऑल रेशियो एनालिसिस ऑफ करंट ईयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यूजिंग एनालिटिकल प्रोसीजर एट द एंड ऑफ द ऑडिट. ठीक है, नाउ कम्स द नेक्स्ट ब्रीफ आंसर. सबसे ईजी आंसर है, मैं बोलूँगा ये आंसर तो अच्छे से करके जाना. ये आंसर आ गया तो आपकी चांदी है. ठीक है, टेक्निक्स अवेलेबल एज सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर. टेक्निक्स अवेलेबल एज सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर. तो सबसे पहले जो डार्क ब्लू पार्ट है वो आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना है बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है. जो लाइट ग्रीन ब्लू शेड है उसको आप कच्चा पक्का करोगे चलेगा. तो व्हाट इज द क्वेश्चन? टेक्निक्स अवेलेबल एज सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर. फर्स्ट टेक्निक इज ट्रेंड एनालिसिस, सेकंड टेक्निक इज रेशियो एनालिसिस, थर्ड टेक्निक इज स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, फोर्थ टेक्निक इज रीजनेबलनेस टेस्ट. ठीक है, चलिए रीड करते हैं. व्हाट इज ट्रेंड एनालिसिस? कॉमनली यूज टेक्निक. इट इज़ अ कंपैरिजन of current data with the prior period balances or with a trend in 2 or more prior period balances. We evaluate whether the current balances moves in line with the trend established in previous years, factors that may cause the account to change. ठीक है, रेशियो एनालिसिस. रेशियो एनालिसिस में क्या करेंगे? यूजफुल फॉर एनालाइजिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज वेल एज एक्सपेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट. इंडिविजुअल बैलेंस शीट अकाउंट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट on its own, but
रिलेशनशिप टू अनदर अकाउंट इज ऑफन मोर प्रेडिक्टेबल। मतलब आप एक इंडिविजुअल अकाउंट, ट्रेड रिसीवेबल है, उसको आप अकेले चेक नहीं कर सकते, बट ट्रेड रिसीवेबल दैट इज डेटर्स और सेल्स को एक साथ चेक करोगे ना तो वो चेक करना ईजी हो जाएगा। वो रेशियो एनालिसिस बोल रहा है। रेशियोज कैन बी कंपेयर्ड ओवर टाइम, सेपरेट एंटिटीज विद सेम ग्रुप और एंटिटी वर्सेस इंडस्ट्री। ठीक है। What is structural modeling? Structural modeling constructs a statistical model from financial और नॉन फाइनेंशियल डेटा ऑफ प्रायर पीरियड्स एंड प्रेडिक्ट द करंट बैलेंसेस। मतलब क्या, हम लोग जो पास्ट का जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा है उसको मद्देनजर रख के हम लोग एक स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाएंगे। और स्टैटिस्टिकल मॉडल से आगे की चीज़ें प्रेडिक्ट करेंगे। इसमें लाइन डायग्राम हो गया, लीनियर प्रोग्रेशन हो गया, ये सब। Now what is reasonableness test? Reasonableness test is performed to analyze whether current year income and expense is reasonable according to current year operation। मतलब आपका जो ये साल का धंधा है उसके रिलेशन में आपने ये साल में जो खर्चे किए वो सच में सही है क्या? ठीक है। This test is not dependent upon prior period data, more relevant for income and expenditure and short term balances rather than long term asset। लॉन्ग टर्म एसेट और लाइबिलिटी पे ये टेस्ट ज़्यादा हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ये किसके लिए रेलिवेंट है? शॉर्ट टर्म बैलेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंस के लिए। ठीक है। Next question is factors to be considered for SAP। What is SAP? Substantive Analytical Procedures। बार बार बोलना पड़ रहा है इसलिए SAP। ठीक है। Factors to be considered for SAP। Factors to be considered for SAP। SAP को कैसे भगाया? पाद मार के। SAP को कैसे भगाया? पाद मार के। तो SAP को किससे डर लगता है? पाद रिस्क से। SAP को किससे डर लगता है? पाद रिस्क से। ठीक है। Now what is पाद रिस्क? पाद रिस्क are the factors considered for SAP, that is Substantive Analytical Procedures। First thing is predictability and account type। Second thing is availability of data। Third thing is nature of assertion। Fourth is disaggregation। Fifth is inherent risk में ये risk वाला पूरा part। So account type and predictability, SAP, that is Substantive Analytical Procedures, are more useful for certain type of accounts than for others। Income statement accounts tend to be more predictable than balance sheet, as balance sheet account represents the net effect of transaction। मतलब क्या बोल रहा है ये? देखो, जो है ना इनकम स्टेटमेंट में जो बैलेंसेस दिए रहते हैं ना उनको प्रेडिक्ट करना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू बैलेंसेस। क्यों? बैलेंसेस में जो आते हैं ना, बैलेंस शीट में जो अकाउंट्स आते हैं वो नेट इफेक्ट करने के बाद आते हैं। ठीक है। तो सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स आर मोर यूजफुल टू द इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स। ओके। अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, जितना ज़्यादा डेटा अवेलेबल रहेगा, जितना ज़्यादा रिलायबल डेटा रहेगा उतना अच्छे से आप साफ कर पाओगे। जितना ख़राब डेटा रहेगा, जितना ख़राब इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा उतना गंदा आपका साफ होएगा। ठीक है। नेचर ऑफ असर्शन, साप may be more effective in providing evidence for some assertions, that is accuracy and valuation, than others such as rights and obligation। हम लोग assertion करते हैं, पता है accuracy है, valuation है। What are assertions? मैनेजमेंट आपको बोलेगा कि इतना वैल्यू है इस चीज़ का, इतना वैल्यू है इन्वेंट्री का, इतना वैल्यू है ये। बट तो आप सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स जैसे कि रेशो है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स है, वो सब करके आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना वैल्यू है, कितना एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया है। बट क्या आप रेशोज़ है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स है, वो करके राइट्स और ऑब्लिगेशंस पता कर सकते हो? नहीं ना। तो वो ये पॉइंट बोल रहे हैं। डिसएग्रीगेशन, द डिग्री ऑफ डिसएग्रीगेशन इज इन अवेलेबल डेटा कैन डायरेक्टली अफेक्ट द डिग्री ऑफ यूजफुलनेस इन डिटेक्टिंग मिसस्टेटमेंट। ठीक है। Inherent risk, the nature of that is risk of material misstatement can be useful to determine if SAP can be used to obtain audit evidence। If ROM is high, then we need to limit the SAP and perform extensively other प्रोसीजर्स। मतलब क्या बोल रहा है? जहाँ पे सपोज पर्टिकुलर एरिया ए है और पर्टिकुलर एरिया बी है, ए में ना ज़्यादा रिस्क है, तो हम लोग वहाँ पे साप कम यूज़ करेंगे और टेस्ट ऑफ कंट्रोल ज़्यादा यूज़ करेंगे और बाकी ऑडिट प्रोसीजर्स ज़्यादा यूज़ करेंगे। बट सपोज एरिया बी में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दैट इज़ रोम इज़ लेस, तो वहाँ पे सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स ज़्यादा यूज़ करेंगे और बाकी सब चीज़ें कम यूज़ करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद प्रिकॉशंस टू बी टेकन, दैट इज स्टेप्स टू बी अलाउड फॉलोड वाइल डिज़ाइनिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है। व्हाट आर द स्टेप्स? सबसे पहले आपको चेक करना है कि SAP for given assertions are suitable or not। मतलब आप जो असर्शंस चेक कर रहे हो, जो मैनेजमेंट ने दावा किया है, असर्शन मतलब क्या? मैनेजमेंट का दावा। तो जो मैनेजमेंट ने दावा किया है वो चेक करने के लिए आपके सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर सूटेबल है क्या? सबसे पहले वो चेक किया। फिर उसके बाद क्या करोगे? आप क्या चेक करने वाले हो? जो डेटा चेक कर रहे हो, जहाँ से डेटा मिलने वाला है आपको सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के लिए, वो डेटा रिलायबल है कि नहीं, दैट इज़ इवैल्यूएट द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड अमाउंट्स विच आर रीजनेबल,
सेट द अमाउंट ऑफ डिफरेंस दैट इज़ एक्सेप्टेबल, सेट द अमाउंट ऑफ डिफरेंस दैट इज़ एक्सेप्टेबल मतलब क्या, अगर आपको है ना कंपैरिजन करना है, पता है कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन में ना कितना डिफरेंस चलेगा कितना डिफरेंस नहीं चलेगा वो करना है। अगर रिस्क ज़्यादा है ये एरिया में तो डिफरेंस का अमाउंट आप कम कर दोगे, और अगर रिस्क कम है तो डिफरेंस का अमाउंट आप बढ़ा सकते हो कि इतना मिसमैच हुआ तो चलेगा। ये लॉजिकल था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, suitability of SAP for given assertions are influenced by, suitability of SAP for given assertions are influenced by, ठीक है। Whether a substantive analytical procedure is suitable, it is influenced by what? Effective art. Suitability of SAP depends upon effective art. Suitability of SAP depends upon effective art. How effective are substantive audit procedures and detecting misstatement? इससे इन्फ्लुएंस होएगा। हाँ, फिर नेचर ऑफ असर्शन, क्या दावा किया है उन लोगों ने, क्या दावा किया उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा है तो क्या ये सूटेबल है ये वाला सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर वो। फिर साप में भी कंसिडर्ड सूटेबल इफ तोड़ इज परफॉर्म फॉर सेम असर्शन, अगर है ना आपने टेस्ट ऑफ डिटेल्स किया हुआ है तो आप क्रॉस कन्फर्म करने के लिए सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हो, तो इससे हम लोग को सूटेबिलिटी पता चल जाती है। तो सूटेबिलिटी ऑफ साप फॉर गिवन असर्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट? इफेक्टिव आर्ट, बाय इफेक्टिव आर्ट। मैं आपको यहाँ पे न्यूमोनिक्स भी दे रहा हूँ, ऑडियो बुक भी बना के दे रहा हूँ, सब दे रहा हूँ। अगर आप लोग को अब तक का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल रिंग कर दो। इससे आपके बाकी फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो इस तरह से अच्छा लाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ डेटा इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट? डेटा रिलायबल है कि नहीं ये किससे पता चलेगा? नेचर एंड सोर्स of controls is comparable. Nature and source of controls is comparable. क्या evaluation of reliability of data is dependent on what? Nature and source of controls is comparable. Nature and relevance of information available. Information कौन से nature की है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। Information कहाँ से आई है? Source of information available. देखो जो है ना आपको कंपनी से इन्फॉर्मेशन मिली ना वो ज़्यादा रिलायबल नहीं रहेगी, बट वही इन्फॉर्मेशन आपको किसी और थर्ड पार्टी से मिली है ना तो वो ज़्यादा रिलायबल है। तो ये इससे पता चलता है कि रिलायबिलिटी है कि नहीं डेटा की। फिर कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट आर डिजाइन टू एंश्योर एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड वैलिडिटी। एग्जांपल कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बजट। मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल है क्या? अगर मैनेजमेंट का कंट्रोल है इन्फॉर्मेशन पे तो ये इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेटेड भी हो सकती है। कंपेरेबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, क्या इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल है? आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो आप इंडस्ट्री डेटा से कंपेयर कर सकते हो क्या? तो वो रिलायबल हुई, समझे? तो कैसे याद रखोगे? नेचर, सोर्स एंड कंट्रोल is comparable. Nature and source of control is comparable. Nature and source of control is comparable. Okay. Next question. Determination of expected amounts which are reasonable depends upon. Determination of expected amounts which are reasonable depends upon. मतलब जो आपने वो expected differences ये जो यहाँ पे पढ़ा है ना, ये 4th point, ये differences कितना होना चाहिए और ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है ये बताओ। तो इसके लिए क्या चीट कोड है? प्रिडिक्टेबल डिग्री ऑफ अवेलेबिलिटी। प्रिडिक्टेबल डिग्री ऑफ अवेलेबिलिटी सबसे पहले एक्यूरेसी विथ विच द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ सैप कैन बी प्रेडिक्टेड। अगर आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट किए हुए तो आप डिफरेंस ज़्यादा रख सकते हो सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर का, ठीक है। द डिग्री टू विच द इंफॉर्मेशन कैन बी डिसएग्रीगेटेड। एग्जाम्पल, SAP may be more effective to individual sections of financial statement than whole। मतलब जितना इंडिविजुअल एरिया होगा ना, जितना इंडिविजुअल और छोटा एरिया है उसके ऊपर SAP ज़्यादा इफेक्टिव है, तो उसके लिए आप है ना जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है उसमें फेरबदल ला सकते हो, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, मैं सब में एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको ताकि समझे, ठीक है। Availability of information both financial and non-financial. Example, whether financial information, budgets or forecast are available to design SAP, of non-financial information that is number of units sold or produced are available to design SAP, ठीक है। उसके बाद investigating results of AP that is analytical procedures. Investigating results of AP that is analytical procedures, ठीक है। तो if analytical procedure performed in accordance with SA 520 and auditor identifies FDI क्या जो हम लोग ने ऊपर पढ़ा है, then the auditor should perform the following procedures। मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया और उसके अकॉर्डेंस दैट इज इन अकॉर्डेंस विद SA 520 ऑडिटर को पता चलता है कि यहाँ पे FDI है, देन ऑडिटर शुड परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर्स। व्हाट आर द फॉलोइंग प्रोसीजर्स? दैट इज इंक्वायर द मैनेजमेंट एंड ऑब्टेन द अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बाय इवैल्यूएटिंग रिस्पॉन्सेज ऑफ मैनेजमेंट। इफ रिस्पॉन्सेज आर इनसफिशिएंट देन
परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर्स. ठीक है. Now the last question, why analytical procedures are normally not relevant for public sector entities. ये बहुत मस्त है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है. Why analytical procedures are not normally relevant for public sector entities. In public sector entities there are little डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर. मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है उसके बीच में का रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आप रिलेशनशिप के ऊपर आप चेक ही नहीं कर सकते ज़्यादा. फिर एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन मे नॉट बी कैपिटलाइज्ड एज देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपेंडिचर. यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, अकाउंटिंग रूल्स जो है वो फॉलो नहीं हो रहे. इंडस्ट्री डेटा फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन मे नॉट बी अवेलेबल. क्यों? पब्लिक सेक्टर में मेनली मोनोपोली होता है. जैसे कि रेलवे के लिए आप किसके साथ कंपेरिजन करोगे, समझे. एटॉमिक पावर एनर्जी है, उसके लिए आप किसके साथ कंपैरिजन करोगे, क्योंकि वहाँ पे मोनोपोली है, समझे. थोड़े बहुत पॉइंट्स है जो मैंने इसमें नहीं लिखे, वो आपके आप मॉड्यूल से चेक कर सकते हो. ठीक है. अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. इट टेक्स अ लिटिल एफर्ट टू मेक द नोट्स एंड देन रिकॉर्ड द वीडियो, सो डू लाइक फॉर दैट. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में हार्ट स्पैम कर देना. थैंक यू.